See, in the last lecture, we have seen one concept. If I want to decide the whether reaction is spontaneous or not, then we have to find out the total entropy. And then we say total entropy means what? It is made up of entropy of the system and entropy of the surrounding. And if total entropy is positive, means greater than zero, the process can be spontaneous. Total entropy is less than zero, the process can be non-spontaneous, means negative. And if total entropy is equal to zero, the process will be at equilibrium. Means we can decide the spontaneity of the reaction by using total entropy, correct? But we had one scientist and his name is Gibbs, and he has given a concept called as the Gibbs energy. Okay, now what is the Gibbs energy? Gibbs energy given by the symbol capital G, and the Gibbs equation is G is equal to H minus Ts, where H is the enthalpy, S is the entropy. But since enthalpy, temperature, and entropy all are state function, so because these all terms are state function, Gibbs energy is also a state function, and we know that state function means what? Value depends upon the initial state and final state, means the value depends upon the change, delta G. So delta G equal to delta H minus T delta S, where delta H is the enthalpy, change in the enthalpy, delta S is a change in the entropy, and all these terms now are related to what? System. Means delta G is called as the Gibbs energy of system, delta H is called as the enthalpy of the system, and delta S is called as the entropy of the system. So all terms are related to a system. एंट्रोपी में क्या हो रहा था कि हमें सिस्टम का भी एंट्रोपी निकालना पड़ रहा था, सराउंडिंग का भी एंट्रोपी निकालना पड़ रहा था, और फिर टोटल एंट्रोपी. तो गिब्स ने बोला सराउंडिंग को इंपॉर्टेंस मत दो, इससे अच्छा कंसीडर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम और उससे डिसाइड करो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं. तो लास्ट लेक्चर में वी हैव डन टिल हियर दैट डेल्टा H इज इक्वल टू delta G equal to delta H minus T delta S, करेक्ट. अभी हमें आज देखना है कि डेल्टा G से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है. So we'll start with today's lecture now. Yes, so with the next setting I'm just having over here is Gibbs energy and Gibbs energy and spontaneity. मतलब how to decide the spontaneity of the reaction by using the Gibbs energy. मतलब Gibbs energy से हमें decide करना है reaction spontaneous है कि नहीं है, correct? So to start that we have to prove something. So we have the formula here. Total entropy is given by the formula entropy of the system plus entropy of the surrounding. Total entropy is given by the formula entropy of the system plus entropy of the surrounding. 1 minute. Yes, so total entropy is given by the formula entropy of the system plus entropy of the surrounding. Okay, now here the same formula I can just write delta S total equal to, लेकिन सिस्टम वर्ड हम ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब कंपल्सरी, हाँ सराउंडिंग लिखना कंपल्सरी है, लेकिन आई कैन जस्ट राइट ओनली डेल्टा एस. मतलब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब अंडरस्टूड है कि इट इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस entropy of surrounding. See here, total entropy is equal to entropy of the system, correct? Entropy of the system, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब we are talking about the system, and entropy of the surrounding. तो system word लिखना compulsory नहीं है,
अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब अंडरस्टूड है कि ये एंट्रोपी सिस्टम का है. So total entropy is equal to entropy of the system plus entropy of the surrounding. Okay. Next, delta S total is equal to entropy of the system, and you know we have the formula. Entropy of the surrounding is given by which formula? Minus delta H upon T. Entropy of the surrounding is given by the formula minus delta H upon T. Okay. So now I'll take the LCM in the next step. So that is equal to, now this T will go here. So it will become what? T delta S minus delta H upon T. Okay. So this is delta S total. I have taken the LCM on the right hand side. So T will get multiplied to delta S and we got this equation. Next, now T will go on the left hand side. So what will get here? T delta S total is equal to T delta S total is equal to T delta S minus delta H. Correct? T delta S minus delta H. T we have taken on the left hand side. Now I'll say here multiply above equation by -1. मतलब ये जो हमें इक्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है उसे -1 से मल्टीप्लाई करो. तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस सी माइनस and minus will become plus delta H. Correct. Now I'll just arrange here. So on rearrangement of equation, मतलब इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करूंगा. मतलब कैसे करूंगा? तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एच लिखा यहाँ पे, डेल्टा एच इससे पहले लिखा, और माइनस टी डेल्टा एस. See what arrangement I have done over here? That delta H I have written here and minus T delta S. Correct? I will just call this equation number 2. Equation number 2. And already in the beginning, we are having the equation. Which equation we have studied in the last lecture? Delta G equal to delta H minus T delta S. This is Gibbs equation number 1. We have studied. What is Gibbs equation? Delta G is equal to delta H minus T delta S. Now compare the equation number 1. What is the equation on the right hand side? Delta H minus T delta S. Correct? What is the right side? Delta H minus T delta S. So equation 1 right side and equation 2 right side are equal. मतलब इक्वेशन 1 and 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लोग इक्वेशन 1 and 2 का लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है? डेल्टा जी है. ओके. और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है? माइनस टी डेल्टा एस टोटल है. सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 the right sides are equal. So what equation we get here? Delta G equal to minus T delta S total. Delta G equal to, मतलब delta G का मतलब Gibbs energy. So now we got the relation between, यहाँ पे हमें relation मिल गया. कौन सा relation मिला? The relation between the Gibbs energy and total entropy. A relation between the Gibbs energy and total entropy. अभी हमें डिसाइड करना है. ये हुआ रिलेशन. तो अभी कैसे डिसाइड करना है? देखो, क्योंकि इक्वेशन समझ में आ रहा होगा. यहाँ तक हमारा मेन इक्वेशन था, दिस इज आवर गिब्स इक्वेशन. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. बाद में अभी गिब्स इक्वेशन मिलने के बाद
हमें डिसाइड करना है कि स्पॉन्टिनिटी कैसे आइडेंटिफाई करोगे. तो वी स्टार्टेड विद द इक्वेशन ऑफ टोटल एंट्रोपी. व्हाट इज टोटल एंट्रोपी? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग. सिस्टम वर्ड ड्रॉप करोगे तो भी चलेगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम. ओके, बाद में एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला? माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. देन मैंने यहाँ पे टी को लेफ्ट साइड में लेके गया तो टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. ओके, देन टी को लेफ्ट साइड में लेके गए तो टी डेल्टा एस टोटल मिला. देन पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये इक्वेशन मिला. इसको खाली रीअरेंज करके वी गॉट दिस इक्वेशन. तो इक्वेशन 1 जो सबसे पहला लिखा हुआ है वो, और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल. नाउ we'll write down the condition. Now we know the condition first. If delta S total is greater than 0, ये हमें मालूम है अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो वी नो दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. तो अभी देखो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 मतलब वैल्यू पॉजिटिव है. तो अगर मैंने यहाँ पे डेल्टा एस टोटल का वैल्यू पॉजिटिव लिया मतलब प्लस लिया, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो डेल्टा जी का वैल्यू कैसे मिलेगा? माइनस. सो इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. देयरफॉर डेल्टा जी is less than 0 and the process can be what? Spontaneous. मतलब अगर मुझे टोटल एंट्रोपी से डिसाइड करना है तो टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए फॉर द प्रोसेस टू बिकम स्पॉन्टेनियस. और डेल्टा जी से अगर मुझे डिसाइड करना है तो डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 मतलब डेल्टा जी कैसे होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए फॉर द प्रोसेस टू बिकम स्पॉन्टेनियस. ये कैसे रिलेशन मिला? देखो डेल्टा एस टोटल का वैल्यू, ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव वैल्यू टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव मतलब कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो ये प्लस है, ये भी वैल्यू फॉर एग्जांपल प्लस है, लेकिन प्लस इनटू माइनस क्या मिलेगा? माइनस. तो डेल्टा जी वैल्यू अगर हमारा निगेटिव रहेगा तो प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस. सेकेंड कंडीशन, इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0 और डेल्टा एस लेस देन 0 मतलब निगेटिव है, निगेटिव मतलब हमारा रिएक्शन कैसे रहेगा? The process can be non, ये हमें मालूम है डेल्टा एस टोटल अगर निगेटिव रहेगा तो प्रोसेस कैन बी नॉन स्पॉन्टेनियस. तो अभी देखो लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो ये वैल्यू हमारा निगेटिव है और नेगेटिव इनटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. तो इसका मतलब डेल्टा जी का जो मुझे आंसर मिलेगा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 एंड सो द प्रोसेस इज गोइंग टू बी व्हाट? नॉन spontaneous. Process is going to be non-spontaneous. Correct? मतलब अगर डेल्टा जी से मुझे डिसाइड करना है तो डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगा द प्रोसेस इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. एंड थर्ड कंडीशन, इफ डेल्टा एस टोटल, ये हमने सब लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है, डेल्टा एस टोटल अगर 0 रहेगा देन द प्रोसेस इज गोइंग टू बी एट इक्विलिब्रियम. The process is going to be at equilibrium. Correct? तो डेल्टा एस टोटल अगर 0 रहेगा तो ये वैल्यू अगर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय टी विल बी 0. ये पूरा 0 ही आ जाएगा, डेल्टा जी भी 0 आ जाएगा. तो देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा जी इक्वल टू 0 मतलब प्रोसेस इज गोइंग टू बी एट इक्विलिब्रियम. करेक्ट? इसका मतलब अगर मुझे डेल्टा जी से अगर डिसाइड करना है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कभी रहे तो कैसे लिखना है? अगर डेल्टा जी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव रहेगा तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो प्रोसेस इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. और डेल्टा जी अगर इक्वल टू 0 रहेगा तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम. मतलब लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हम लोग टोटल एंट्रोपी से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आज देखा कि हम लोग गिब्स एनर्जी पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस कभी रहेगा. सो दीज आर द कंडीशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन?
डेल्टा जी अगर नेगेटिव रहेगा द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव रहेगा तो प्रोसेस इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर जीरो रहेगा तो प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो डेल्टा जी और डेल्टा एस पूरा रिलेशन अपोजिट है, अपोजिट यहाँ पे पता चलता है ना, देखो डेल्टा जी वैल्यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस टोटल वैल्यू बट साइन इज डिफरेंट माइनस, तो ये दोनों का रिलेशन है। तो वी कैन डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू देख के रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं ये डिसाइड कर सकते हैं, करेक्ट? यस। Do you have any doubt over here in this derivation? तो what we have learned कि हम लोग decide कर सकते हैं, in short delta G अगर less than 0 रहेगा तो reaction is spontaneous, delta G अगर greater than 0 रहेगा तो reaction is non spontaneous, और delta G अगर 0 रहेगा तो process will be at equilibrium. So this is what we learn from this derivation, correct? Do you have any doubt? Okay, no, I'll just go on the next heading. Okay. Yes, next heading is spontaneity and delta H और delta S, मतलब हमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं डिसाइड करना है, बट बाय यूजिंग विच वैल्यू, डेल्टा H और डेल्टा S। डेल्टा H इज अ चेंज इन द एंथैल्पी, डेल्टा S इज अ चेंज इन द एंट्रोपी। ये दो वैल्यू देके हमें डिसाइड करना है कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा कि नहीं। आपको डेल्टा G हमें यूज करना ही है। द फर्स्ट कंडीशन, first see what is Gibbs equation. Gibbs equation, delta G is equal to delta H minus T delta S, ये हमारा Gibbs equation है। Okay, then first condition, if delta H and delta S both are negative, both are negative, मतलब अगर हम लोग कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हमें कोई रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन का एंथैल्पी और रिएक्शन का एंट्रोपी दोनों वैल्यू निगेटिव, मतलब they have given some reaction conversion of A into B और मे बी कन्वर्जन ऑफ C into D, या कोई भी रिएक्शन हमें दिया है, लेकिन उस रिएक्शन का एंथैल्पी और उस रिएक्शन का एंट्रोपी दोनों भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। तो कैसे होगा देखो अभी, इफ आई से हियर डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, करेक्ट? देखो उन्होंने क्या बोला, डेल्टा H निगेटिव है, तो मतलब ये जो वैल्यू मेरा है माइ नेगेटिव है, माइनस, करेक्ट? माइनस डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ये तो फॉर्मूला का माइनस साइन आ गया। टेम्परेचर और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा एच और माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस टी डेल्टा एस। ओके, प्लस टी डेल्टा एस। नाउ हियर आई वांट, मुझे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव चाहिए, क्योंकि मालूम है डेल्टा जी अगर निगेटिव रहेगा तो ये हमारा रिएक्शन कैसे बनेगा, स्पॉन्टेनियस। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 रहेगा तो रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस, तो इसीलिए यहाँ पे देखो डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव उन्होंने दिया हुआ है, डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव भी उन्होंने दिया हुआ है, ये माइनस माइनस ये रहेगा, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, लेकिन मुझे लास्ट का आंसर अगर निगेटिव चाहिए, तो लास्ट का आंसर अगर मुझे निगेटिव चाहिए तो इसका मतलब डेल्टा एच वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, बिकॉज देखो ये वैल्यू है मेरा -5,
ये -5 and +3, तो -5 + 3 will become what? -2. मतलब इन शॉर्ट कि अगर मुझे लास्ट आंसर अगर नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच शुड बी लार्जर इन द मैग्नीट्यूड, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू हायर चाहिए तो ही मेरा आंसर नेगेटिव बनेगा, और ये टी डेल्टा एच शुड बी स्मॉलर, ये वैल्यू स्मॉलर चाहिए, टी डेल्टा एच शुड बी स्मॉलर, दिस वैल्यू शुड बी स्मॉलर। ये वैल्यू अगर मुझे स्मॉलर चाहिए तो डेल्टा एस का वैल्यू तो स्मॉल चाहिए ही चाहिए, लेकिन टेम्परेचर भी लो चाहिए, सो टी डेल्टा एस शुड बी स्मॉलर एंड दिस इज पॉसिबल एट लोअर, दिस इज पॉसिबल एट लोअर टेम्परेचर। मतलब देखो डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एस भी नेगेटिव था, ये नेगेटिव ऐसे ही आ गया, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मुझे लास्ट में आंसर नेगेटिव चाहिए, तो लास्ट में आंसर को मुझे नेगेटिव चाहिए तो क्या चाहिए, डेल्टा एच शुड बी लार्जर इन द मैग्नीट्यूड और ये टी डेल्टा एच शुड बी स्मॉल, ये वैल्यू अगर मुझे स्मॉल चाहिए तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी कैसा चाहिए, लो चाहिए, और तो ये वैल्यू स्मॉल बनेगा और ये वैल्यू लार्ज बनेगा और आंसर नेगेटिव है। मतलब इन शॉर्ट कि अगर डेल्टा एच एंड डेल्टा एच दोनों नेगेटिव है, ओके, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच अगर दोनों नेगेटिव है, देन reaction is spontaneous at lower temperature, reaction is spontaneous at which temperature, lower temperature। मतलब अगर तुम लोगों ने रिएक्शन हायर टेम्परेचर पे परफॉर्म कर दिया तो क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ेगा, और ये वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये +5 और -3, +5 -3 द आंसर इज गोइंग टू बी +2, तो +2 मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, एंड डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन इज गोइंग टू बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब अगर मतलब हमें कोई रिएक्शन दिया हुआ है और हम लोग ओरली डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन में डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, यस, रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस बट द टेम्परेचर शुड बी लो, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनेगा। ओके, नाउ आई विल गो फॉर सेकंड कंडीशन, इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस both are positive, डेल्टा एच का भी वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एस का वैल्यू भी पॉजिटिव है। ओके, सो राइट द गिब्स इक्वेशन, तो व्हाट इज गिब्स इक्वेशन, वी आर हैविंग डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच minus t delta s, okay, now in this equation delta h and delta s both are positive, दोनों पॉजिटिव है, एच एंड डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव ही है, टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, इक्वल टू, और मुझे लास्ट में आंसर नेगेटिव चाहिए, लास्ट का आंसर नेगेटिव चाहिए, तो अगर मुझे लास्ट का आंसर अगर नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब टी डेल्टा एस शुड बी लार्जर इन द मैग्नीट्यूड देन डेल्टा एच। मतलब अगर मुझे लास्ट का आंसर नेगेटिव चाहिए तो टी डेल्टा एस का वैल्यू कैसा होना चाहिए, हायर चाहिए, ये वैल्यू हायर चाहिए, मतलब टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, सो हियर वी कैन से टी डेल्टा एस शुड बी लार्जर, and if I want this value to be larger then reaction should be performed at higher temperature, करेक्ट। इसका मतलब अगर हमें कोई इक्वेशन दिया है और उस इक्वेशन में डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव है, देन दोनों पॉजिटिव है, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी का हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट हायर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हायर टेम्परेचर, करेक्ट। मतलब अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ओरली डिसाइड कर सकते हो आप
कि डेल्टा एच और डेल्टा एच के दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, करेक्ट, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन सकती है, या हम लोग बना मतलब बोल सकते हैं प्रोवाइडेड दैट द रिएक्शन शुड बी परफॉर्म एट हायर टेम्परेचर। तो ये कंडीशंस है। डेल्टा जी नेगेटिव आया मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, लेकिन कभी स्पॉन्टेनियस होगी इफ टी डेल्टा एस इज लार्जर एट हायर टेम्परेचर। ओके, थर्ड कंडीशन, third, 1 minute, I'll just turn the page. The third condition, if delta H is negative and delta S is positive, मतलब डेल्टा H नेगेटिव है and delta S पॉजिटिव है। तो अभी देखिए, अगर we'll write down the Gibbs equation. What is Gibbs equation? Delta G is equal to delta H minus T delta S. देखो डेल्टा H नेगेटिव है तो डेल्टा H का वैल्यू माइनस है, माइनस टी, और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, इक्वल टू और मुझे लास्ट आंसर नेगेटिव चाहिए, तो लास्ट आंसर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये भी वैल्यू मेरा माइनस ही है और ये भी वैल्यू माइनस है, मतलब -2 एंड -3 -5, -3 एंड -2 इज -5, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू भी मेरा निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव वैल्यू अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर इज गोइंग टू बी निगेटिव। मतलब यहाँ पे लोअर टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर का सवाल ही नहीं आता है। मतलब अगर मुझे कोई इक्वेशन दिया है और एक अगर उस इक्वेशन में डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस इज पॉजिटिव है, देन यू कैन से रिएक्शन इज spontaneous at all temperature, reaction is spontaneous at all temperature, मतलब यहाँ के टेम्परेचर का कंडीशन ही नहीं है। तो देखो अगर ये वैल्यू मेरा लोअर रहेगा, ये वैल्यू अगर लोअर रहेगा लेकिन यहाँ पे साइन माइनस ही है तो आंसर मुझे नेगेटिव ही मिलेगा, और ये वैल्यू अगर हायर भी रहेगा तो भी मुझे आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। मतलब अगर मुझे कोई इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों का डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, करेक्ट, तो reaction is going to be spontaneous at all temperatures, whether we have a low temperature or we have a high temperature, ये reaction हमारा हमेशा spontaneous रहेगा, correct. And the fourth condition, if, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, डेल्टा एच निगेटिव लिया, तो नाम से डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, तो देखते कंडीशन क्या रहेगा। So I'll write equation again, delta G equals to delta H minus T delta S. Delta G equal to delta H minus T delta S, correct? Okay, delta H का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, माइनस टी, डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव है, ये नेगेटिव है, so delta H minus into minus will become plus T delta S। अभी देखो यहाँ पे मेरा आंसर जो है डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज ये वैल्यू भी मेरा प्लस है, ये वैल्यू भी प्लस है, तो +2 +3 आंसर +5, +3 +2 आंसर इज प्लस, दोनों वैल्यू प्लस है, एडिशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली। और डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब अगर हमारे रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, उस रिएक्शन के लिए हमारा डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, whether you can perform at lower temperature
और whether you can perform at high, मतलब ये वैल्यू लोअर होने दो या हायर होने दो, बट डेल्टा H पॉजिटिव ही रहेगा. So you can say here if delta H is positive and delta S is negative, reaction is non spontaneous at all temperature. Reaction is going to become non-spontaneous and at all temperature. मतलब all मतलब whether we can have low temperature or whether we can have high temperature. तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है. यहाँ पे क्या था, रिएक्शन हमेशा दोनों नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ही मिलने वाला है. यहाँ पे रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगी एट ऑल टेम्परेचर वेदर लो और हाई, और यहाँ पे रिएक्शन हमेशा मतलब ऑलवेज विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर. सो दीज आर द 4 कंडीशन. उसके ऊपर से हमें विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट सॉल्विंग एनी सम, हम लोग ओरली बोल सकते हैं कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा. करेक्ट. सो आई जस्ट रिपीट दिस एंड देन आई गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. देखो what is the heading we had. Spontaneity हमें डिसाइड करना है by using the value of delta H or delta S. Okay, what is the equation कि अगर delta H और delta S दोनों नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर. डेल्टा H एंड डेल्टा S दोनों पॉजिटिव है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर. ओके, और अगर डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा S पॉजिटिव है, रिएक्शन इज always spontaneous at all temperature. And if delta H is positive and delta S is negative, reaction is non-spontaneous at all temperature. हमेशा non-spontaneous रहेगी. करेक्ट. ये 4 कंडीशन से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. करेक्ट. ओके, और अगर आप कोई भी मतलब जेई का पेपर निकालो या कोई भी नीट का पेपर निकालो, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें ये कंसेप्ट के ऊपर मिलेंगे. मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी ऑन दिस कंसेप्ट. ओके, ठीक है. अभी यहाँ पे इधर इस टॉपिक में कोई डाउट है आपको तो बोल दो. ओके, नहीं है तो निकल दो. प्रोसीड फॉर द टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब क्या होता है हमें देखना है. देखो हमने यहाँ पे बोला था कि अगर डेल्टा H एंड डेल्टा S दोनों नेगेटिव है तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर. तो लोअर मतलब कितना लोअर, मतलब कहाँ तक. डेल्टा H और डेल्टा S अगर दोनों पॉजिटिव है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस हायर. हायर मतलब कौन से टेम्परेचर के बाद, वो मतलब हमें मिडिल पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से टेम्परेचर के पहले रिएक्शन या कौन से टेम्परेचर के बाद रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा. ओके, 1 मिनट. ओके, नाउ अभी हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम कौन सा रहेगा. ओके, सो वी आर हैविंग द गिब्स इक्वेशन. व्हाट इज गिब्स इक्वेशन. डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. करेक्ट, ये गिब्स इक्वेशन है. नाउ व्हेन आई से द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा G 0 होता है. करेक्ट. सो एट इक्विलिब्रियम द डेल्टा G इज इक्वल टू 0. तो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर at equilibrium delta G is equal to 0. करेक्ट. तो अगर मैं डेल्टा G यहाँ पे 0 लिखा तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. 0 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. अभी मैं T डेल्टा S को लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, T डेल्टा S is equal to delta H and therefore T equal to delta H upon delta S. So मुझे ये जो वैल्यू मिलेगा, this temperature is called as which temperature,
इक्विलिब्रियम, मतलब इस टेम्परेचर पे हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेगा, और इसके लोअर या इसके हायर में रिएक्शन क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस भी होगा वो. बट दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द equilibrium temperature. Of course, we have to solve the numerical based on the Gibbs equation, the numerical which are based on the equilibrium temperature. So what is the formula for equilibrium temperature? T equals to delta H upon delta S. T equal to delta H upon delta S. Okay. Next. I'm going for the next heading. Yes. One minute. Yes, the next heading I'm having over here, Gibbs function and equilibrium constant. The next heading we're having over here, Gibbs function and equilibrium Gibbs function and equilibrium constant. Okay. ये अभी इक्वेशन क्या है हमें देखना है, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बेसिकली, मतलब यहाँ पे हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी रिलेशन बिटवीन Gibbs energy and equilibrium constant, called as a K. So we have to see here a relation between the delta G, मतलब equilibrium Gibbs energy and equilibrium constant. क्या relation? Correct. So I'll just start now with this heading. 1 minute. Yes. Suppose for example, they have given the equation to us. Equation A moles of A, D moles of B. ये react करेंगे and they'll produce C moles of C plus D moles of D. Capital A and B are called as reactant. Capital C and D are called as a product, and small ab and small cd are called as a coefficient of the balanced equation. हम लोग जो balancing में जो number use करते हैं वो number है. So capital A and B are the reactant, capital C and D are the product, and small ABCD are the coefficient which are used for the balancing of the chemical equation. Correct. So I can say here this is considered the reaction. Now for this reaction, we have to find out the value of delta G. मतलब अगर हम लोग रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी वैल्यू कितना रहेगा. करेक्ट. डेल्टा जी कितना रहेगा, तो डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू. मतलब देखो ये रिएक्शन में डेल्टा जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, डेल्टा जी कैलकुलेट कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ, मतलब सिंपल गिब्स एनर्जी. दोनों में डिफरेंस है. डेल्टा जी का मतलब ओनली गिब्स एनर्जी एंड डेल्टा जी जीरो का मतलब क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी. तो दिस इज सिंपल गिब्स एनर्जी एंड दिस इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी. तो ये हमारा इक्वेशन नॉर्मल कंडीशन में है एंड हमारा इक्वेशन नॉर्मल कंडीशन में है, इसीलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, गिब्स एनर्जी. तो गिब्स एनर्जी ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन इज इक्वल टू इट्स, मतलब अगर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो उसका डेल्टा जी जीरो plus R is a gas constant, T is a temperature, and Q is called as what? Q here is called as a reaction quotient. Q is called as a reaction quotient. So I'll just write down here what is Q stand for. Q is called as reaction quotient. Now what is reaction quotient here? It involves
non equilibrium, it involves non equilibrium concentrations or partial नॉन इक्विलिब्रियम, मतलब अगर सॉल्यूशन रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ gaseous reactions. See here, what is Q? ये हमारे नया टर्म है हमारे लिए. Q is called as the reaction quotient. It involves the नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. मतलब अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, मतलब ए बी सी डी, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का क्या मेजर करोगे? कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन अगर हमारे पास ए बी सी डी गैसेस है तो गैसेस के लिए क्या मेजर करोगे? पार्शियल प्रेशर. करेक्ट. मतलब इट इन्वॉल्व्स व्हाट? नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और नॉन इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन. करेक्ट. मतलब अगर हमारा इक्वेशन लिक्विड स्टेट में रहेगा then for A, B, C, D we will measure their concentration. लेकिन अगर हमारे A, B, C, D अगर gases है तो we will measure their what? Partial pressure. And what is the formula here? Q, Q, C. C मतलब concentration. फिर QC, QC equal to, देखो मैं यहाँ पे इधर Q is the reaction quotient which is similar to equilibrium constant K. देखो एक Q हमारे नया टर्म है. Q is called as reaction quotient but which is similar to equilibrium constant capital K. देखो लास्ट चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग K फाइंड आउट करते हैं और K is called as इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. प्लीज ट्राई टू रिकलेक्ट. अगर हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिल जाता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ K. तो Q और K दोनों सेम ही है, लेकिन Q के लिए हमें क्या लेना है? नॉन इक्विलिब्रियम, और K के लिए हम लोग क्या लेते थे? वैल्यू ओनली इक्विलिब्रियम. यही डिफरेंस है. मतलब इफ आई वांट टू, मतलब हम लोग जब इक्विलिब्रियम, देखो अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, लास्ट ईयर we have seen the concept of reversible reaction. What is reversible reaction? The reaction in which the rate of the forward and reverse reactions are equal are called as a reversible reaction. और अगर हमारा reaction reversible रहेगा then reversible reaction will reach at equilibrium, और अगर हमारा reaction equilibrium पे चला जाएगा तो constant को क्या बोलोगे? K. The K क्या करता है? K involves equilibrium concentration. So I'll just write down here K. K, it involves equilibrium concentration. It involves equilibrium concentration, और Q involves what? Non equilibrium concentration. मतलब अगर मुझे K find out करना है तो compulsory reaction should reach at equilibrium. मतलब rate of the forward and reverse reaction should be equal. लेकिन अगर मुझे Q find out करना है तो reaction should be in the which condition? Non equilibrium. The rate of the forward and reverse reaction should not be equal. ये दोनों का difference है. I'll repeat again. Q is called as a reaction quotient which is similar to the equilibrium constant K. दोनों सेम है. Difference क्या रहेगा? If I want to find out the value of K, the reaction should reach at equilibrium, and then I can use the formula. But if I want to find out the value of the Q, then the reaction should not reach to equilibrium. So I require which concentration? Non-equilibrium. Okay. So I'll write here QC equal to concentration of C raised to C, concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. मतलब हमारा देखो QC का फॉर्मूला इज सेम एज KC जो हम लास्ट ईयर किया. सेम फॉर्मूला सेम, इसलिए बोला हमने रिएक्शन कोएफिशिएंट इज सिमिलर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.
एक्सप्रेशन सेम ही था, लास्ट ईयर हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे KC लिखते थे। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशंस है तो सॉल्यूशन का हम लोग क्या मेजर करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन मेजर करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into B raised to B, करेक्ट। और लेकिन अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल और अगर गैसेस है तो गैसेस के लिए क्या मेजर करूंगा, पार्शियल प्रेशर। तो QP इज इक्वल टू partial pressure of C raised to C into partial pressure of D raised to D divided by partial pressure of A raised to A into partial pressure of B raised to B। मतलब देखो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है जो हम लोग के लिए KC और KP के लिए लास्ट ईयर किया था, लेकिन यहाँ पे K के लिए अगर मुझे K लिखना है यहाँ पे तो K के लिए कंपल्सरी क्या होना चाहिए, द रिएक्शन शुड रीच एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी मुझे Q फाइंड आउट करना है तो Q के लिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम जाने की जरूरत नहीं है। तो QC मतलब इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड नॉन इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, तो QC एंड Q। ओके, यहाँ पे देखो इक्वेशन है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q। Q कैन बी QC, Q कैन बी QP। तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे I'll just substitute in this equation here. Delta G equal to delta G0 plus RT और मैं यहाँ पे QC लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे QC लिख रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मैं QC लिख सकता हूँ और डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT सॉरी ln QC और यहाँ पे ln QP। Hello sir. Yes. सर डेल्टा G आणि डेल्टा G0 मध्ये काय फरक आहे? Delta G means equation is not in the standard condition and delta G0 means what, equation is in the standard condition, means 1 minute. See here we are doing the reaction but our reaction is not in the standard state, मतलब reaction is not at 298 Kelvin or reaction may not be at 1 atmosphere pressure. So in this reaction temperature is not 298 Kelvin, pressure is not 1 atmosphere, that means reaction is not in the standard state. But if I write here delta G0, that means reaction is at 298 Kelvin and pressure is 1 atmosphere, that is the difference. Okay, so we are just assuming here कि अपना जो यहाँ पे reaction चल रहा है, this reaction is not in the standard state. Okay, लेकिन हर एक रिएक्शन के लिए देखो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं, लेकिन अगर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड स्टेट में होता, करेक्ट, अगर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड स्टेट में होता तो उसका डेल्टा G वैल्यू कितना होता वो हमारे पास रिकॉर्ड में रहता है कि मतलब अभी हम लोग रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट, अभी इक्वेशन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो उसका डेल्टा G वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इस इक्वेशन को अगर हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे तो उसका डेल्टा G0 वैल्यू हमें अवेलेबल है। डेल्टा G0 वैल्यू अवेलेबल व्हाट टेम्परेचर 298 केल्विन एंड एट 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार प्रेशर, और साइंटिस्ट ने ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे लिए रख दिए। मतलब अगर मतलब ये इक्वेशन मैंने 298 पे परफॉर्म कर दिया और अगर मैंने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा तो डेल्टा G वैल्यू कितना आएगा वो मुझे ऑलरेडी मालूम है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये रिएक्शन 298 पे नहीं कर रहा हूँ, कोई अलग टेम्परेचर पे कर रहा हूँ, मैं प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे नहीं कर रहा हूँ, कोई अलग प्रेशर पे कर रहा हूँ, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा G का। आ रहा है समझ में दोनों का डिफरेंस? सर आणि ln QC म्हणजे log of QC का? ln means natural log, ln means natural, means base to the E, and we convert ln to log. When you convert 2.303, ln means base is E. See, this is the difference. See here, ln 2 and base is E, and when I say log 2 then base is 10. So actually this is a natural log with base E, and when I say log the base is 10, but we are using logbook, and in logbook all the values are given with respect to base 10. So we always convert ln to log, and to convert ln to log we multiply by which number? 2.303. Okay, so ln is actually a natural log. So
Yes, clear. हो सर. Delta G equal to delta G0 plus RT ln QC, and delta G is equal to delta G0 plus RT ln QP. So instead of Q, I have written here as a QC, and here I have written as a QP. And I'll substitute the values here. Delta G is equal to delta G0 plus RT ln QC. What is value of the QC? Concentration of C raised to C into concentration of D raised to D into concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Correct? This is the equation, and if I substitute here, then delta G equal to delta G0 plus RT ln and QP. QP will be what? Partial pressure of C raised to C into partial pressure of D raised to D divided by partial pressure of A raised to A into partial pressure of B raised to B. This is the formula, because sometime in the numerical they give concentration, so we write this, and they provide the partial pressure. If, then they have to use this formula. Correct? Now next step. देखो, हम लोगों ने यहाँ पे Q लिखा. Q का मतलब रिएक्शन कोशेंट. रिएक्शन कोशेंट का मतलब हमारा रिएक्शन नॉन इक्विलिब्रियम था. मतलब स्टार्टिंग में हमारा रिएक्शन नॉन इक्विलिब्रियम में है, लेकिन स्लोली हमारा रिएक्शन कौन से कंडीशन में चला जाएगा? इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा. मतलब इन द बिगिनिंग जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, तब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं था. इक्विलिब्रियम पे नहीं था मतलब रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस वर नॉट इक्वल. बट स्टार्टिंग में नॉन इक्विलिब्रियम है, but slowly reaction will reach at equilibrium. And if reaction approaches equilibrium condition, equilibrium पे, then ये जो हमारा रिएक्शन है, अगर पहले नॉन इक्विलिब्रियम पे था तो डेल्टा जी, लेकिन अगर स्लोली हमारा रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा तो हमारे रिएक्शन का डेल्टा जी विल बिकम जीरो. बिकॉज हमें मालूम है कि अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाता है तो डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है. सो इफ आवर रिएक्शन अप्रोचेस इक्विलिब्रियम, देन डेल्टा जी, मैं डेल्टा जी की बात कर रहा हूँ, डेल्टा जी, क्योंकि हमारे इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ है, एंड डेल्टा जी विल बिकम जीरो. एंड जो हमारा Q है, QC रहेगा तो विल चेंज टू व्हाट? KC, and QP will change to what? K. Because मतलब ये नॉन इक्विलिब्रियम था, लेकिन जैसे हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चले जाएगा तो Q will become K. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं था. करेक्ट? तो इसलिए हमने क्या कैलकुलेट कर दिया? Q मतलब रिएक्शन कोशेंट, and it involves which concentration? non-equilibrium concentration. तो ये हमारा फॉर्मूला था QC और QP का वैल्यू, और हमारे इक्वेशन में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया. बट स्लोली हमारा रिएक्शन कहाँ पे चला जाएगा? इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा. और जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा तो क्या होगा? जो हमारा डेल्टा जी जो वैल्यूज था विल बिकम जीरो, QC विल बिकम KC एंड QP विल बिकम KP. तो आई जस्ट रीराइट दिस इक्वेशन. देखो, अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा तो यहाँ पे देखो इन दिस इक्वेशन, इधर देखो, डेल्टा जी विल बिकम जीरो. तो आई राइट जीरो इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस RT ln QC will become what? KC. करेक्ट? एंड देन मैं ये डेल्टा जी जीरो ऐसे रखता हूँ, इसे लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो मेरा इक्वेशन क्या मिलेगा? देखो, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस RT ln KC. करेक्ट? बट हम लोग लॉग बुक यूज करते हैं और हमारे पास ln के फॉर्म में वैल्यूज नहीं है, तो ये इक्वेशन कैसे आएगा? देखो, डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस 2.303 RT log to the base 10 into KC. तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द डेल्टा जी. सो डेल्टा मतलब हमने हेडिंग ही था. व्हाट इज आवर हेडिंग?
relation between the Gibbs energy, the standard Gibbs energy and equilibrium constant. So we got the relation here. So delta G0 is equal to minus 2.303 RT log of Kc to the base 10. ये हमारे फॉर्मूला हुआ. ओके, अभी सिर्फ यहाँ से देखो, इधर ये मेन इक्वेशन. रिएक्शन अप्रोचेस इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा. डेल्टा जी 0 प्लस RT ln Kp. 1 मिनट, थोड़ा ब्लर आ रहा है. Then in this case I'll just write on delta G0 equal to a, राइट साइड में लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस RT ln Kp. करेक्ट. फिर उसके बाद डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ln है, ln का मतलब बेस ई है, एंड आई वांट टू कन्वर्ट बेस ई इनटू लॉग, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2.303 log, सॉरी 1 मिनट, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kp to the base 10. तो ये हमारा फॉर्मूला हो. ओके, सो Kc मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड Kc मतलब इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर. दोनों का फॉर्मूला सेम है. एग्जाम में Kc दिया तो यहाँ पे खाली Kc चेंज करो, और Kp दिया तो यहाँ पे Kp चेंज करो. करेक्ट. अच्छा, कुछ ये डेरिवेशन में कोई डाउट है क्या, बोलो. मैं एक बार रिपीट करता हूँ, वापस देखो. सी हियर, हमें क्या प्रूव करना था, रिलेशन बिटवीन एक डेल्टा G0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या रहेगा. करेक्ट. तो ये रिलेशन डेल्टा G0 और K में रिलेशन बताने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एज्यूम किया कि हमारा रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में, मतलब हमारा रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, तो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा G. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा G. ये डायरेक्ट इक्वेशन हमने यूज किया, ये इक्वेशन हमने कहाँ पे डिराइव नहीं किया है. तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q. Q मतलब ये डेल्टा, तुमने यहाँ पे डेल्टा G0 कैसे मिला, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोग हैं या जो भी सीनियर पीपल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने इस इक्वेशन का डेल्टा G0 ऑलरेडी 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है. खाली अभी हम लोग डेल्टा G क्यों निकाल रहे हैं, कि अभी हमारा रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, तो हमें डेल्टा G निकालना. प्लस RT ln Q. Q का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन कोशेंट. रिएक्शन कोशेंट क्या है, विच इज सिमिलर टू, मतलब Q जो है इट इज सिमिलर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मींस सिमिलर टू K. तो Q और K दोनों में डिफरेंस क्या है, तो Q इन्वॉल्व्स नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पहुंचने के पहले वाले कॉन्सेंट्रेशन Q है. तो ये QC का फॉर्मूला और ये QP का फॉर्मूला. और अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा तो क्या होगा, K इन्वॉल्व्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. फिर हमने QC और QP का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे QC और QP के वैल्यूज लिखे. ओके, मतलब वी हैव सॉल्व्ड इन. बाद में मैंने इस मेन इक्वेशन में ऐसे एज्यूम किया कि इफ आवर रिएक्शन अप्रोचेस टू, मतलब स्लोली जो हमारा रिएक्शन स्टार्टिंग में नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल नहीं थे, वो अभी इक्वल हो गए, मतलब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है. तो रिएक्शन अगर हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया तो डेल्टा G 0 होगा, और QC will change to KC and QP will change to KP. So in this equation, delta G0 होगा delta G0 plus RT ln KC. थोड़ा रीअरेंज कर दिया, ये इक्वेशन मिला. और हम लोग ln नहीं यूज कर सकते, बिकॉज हम लोग लॉग बुक यूज करना है हमें, लॉग बुक, तो यहाँ पे आएगा बेस टू द 10. ओके, तो ये इक्वेशन हुआ. सिमिलरली सेम इधर भी क्या हुआ, डेल्टा G0, ये मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, डेल्टा G हैज बिकम 0. मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बॉक्स डालता तो पता चलेगा कि ये बॉक्स टू बॉक्स है, यहाँ से यहाँ तक.
Okay, box to box. Box to box. And then we got this equation. So we got relation between what? Standard Gibbs energy and equilibrium constant, correct? We have to solve the numerical based on all this formula, but that we will do it in the next lecture. Okay. Now tell me, do you have any doubt on this derivation? On this derivation?